میں آپ کا وکیل، اللہ میرا کفیل۔ ہم قانون دان ہیں، ہمارے وکیل کو اور ہمیں کوئی تکلیف دے گا تو اس کو دماغ ٹھیک کرنا آتا ہے اور اس کو ہم قانونی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ کیسے ہیں کامران آپ؟ الحمدللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹرگل وائس کے پلیٹ فارم سے آج ہم شوٹ کر رہے ہیں دی لیگل ولاگ، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران یونس ایوان صاحب، جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ایز اے لائبریری کی سیٹ پر KBA میں۔ 12 سال ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور ریگولر پریکٹس موسٹلی کراچی میں کرتے ہیں، ادر سٹیز میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم سر سے بات کرنے والے ہیں الیکشن پہ اور الیکشن کمپین پہ اور ایڈوکیسی پہ، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ سر کیسی جا رہی ہے آپ کی کمپین؟ سنا ہے کہ لائبریری کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں آپ۔ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور میرے دوست سپورٹ کر رہے ہیں مجھے، اور آپ صبح آ گئے ماشاءاللہ سے، تو گڈ مارننگ آپ نے ہماری کروائی ہے۔ اور کامران آپ اور ماشاءاللہ بہت محنت بھی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے ہر معاملات میں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی جو ہے اس لائبریرین کی سیٹ پہ کامیاب ہوں۔ اور میں اپنے سارے دوستوں کو، اپنے کولیگس کو بولوں گا کہ مجھے ووٹ بھی دیں اور ضروری سپورٹ بھی کریں، کیونکہ سپورٹ تو ضروری ہے آپ لوگوں کی۔ ویسے تو سپورٹ ہر ایڈوکیٹس کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری ایک اپنی ایک یونٹی ہے، اور ہم زندگی میں جو ہمیں یہ شعبہ ملا ہے یہ قانون دانی کا، یہ قانون دان ایکچولی سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے ہر انسان کے لیے، کہ کوئی کسی کے کام آ سکے، کیونکہ اگر ثالثی کا کردار کسی نے ادا کرنا ہے تو اللہ کے بعد اگر کسی کو ملتا ہے یہ معاملہ تو وہ ایڈوکیٹس کو ملتا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں اور جو پریشانی میں آپ کے پاس آئیں ان کے مسئلے حل کر سکیں۔ 2026 میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں KBA کے، اس میں آپ لائبریری کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا کوئی نئی چیز لانا چاہتے ہیں اس میں؟ بالکل ہاں، ہم اسٹریٹجی ہماری ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہم ایک تو لائبریری کو ان فیوچر اگر میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے کولیگس نے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ اگر میں سلیکٹ ہوتا ہوں، اور سلیکٹ ہونے کے بعد میں نے جو فیوچر پلان بنایا اس میں لائبریرین کو اور اچھا اور بہترین بنائیں گے، کہ ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ایسوسیٹس ہیں اور جو ہمارے جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان کے لیے ایک ایزی وے ملے، کیونکہ سائٹیشنز میں معاملات جیسے سائٹیشنز نہیں ملتی، کچھ جگہوں پہ آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، ان کی سائٹیشنز ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک نئی جدید طریقے کے سسٹم لے کر آئیں گے جس سے کہ ہمیں ایزی وے ملے، ہمیں بھی ہمارے دوستوں کو، کیونکہ ہم سب ایک ہی ہیں، اگر ان کو ایزی ملے گا تو ہمیں بھی ایزی ملے گا، اور ہم ایک دوسرے سے ویسے بھی مشورہ کرتے رہتے ہیں، کوارڈینیشن میں رہتے ہیں ہر معاملات میں، چاہے وہ کیسز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو۔ ہمارا الیکشن بیسیکلی کوئی لڑائی جھگڑے والا الیکشن نہیں ہوتا، ایک فن ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ سر کراچی میں لوور کورٹ میں سننے میں آتا ہے کہ 26,000 یا 24,000 ایڈوکیٹس انرولڈ ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایشیا کی سب سے بڑی بار بھی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی بار بھی ہے، تو اس میں الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ الیکشن جو ہے ایکچولی ہے ہی ڈیفیکلٹ سسٹم، اس کے اندر ہر ایک کو منانا، ہر ایک کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں دوست تو ان کو بھی مناتے ہیں ہم، اور بس ایک یہ دیکھیں یہ الیکشن وہ والا الیکشن نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، یہ الیکشن بیسیکلی ایک دوسرے کو سمجھنے کا الیکشن ہے، کیونکہ یہ ایجوکیٹڈ ووٹ ہوتا ہے، یہ ایک تعلیم یافتہ ووٹ ہے۔ ہر وکیل جو ایجوکیٹڈ ہوگا، اور ایجوکیٹڈ ووٹ لینا آسان نہیں ہے، اس کے لیے سب کو سمجھانا پڑتا ہے اس معاملے میں کہ میں اس نئے پرانے والے سے بہتر ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ میرے دوست اور میرے کولیگس میرا ساتھ دیں، اور میرے سارے ہی دوست ہیں الحمدللہ۔ سر بار کی جو سیاست ہے اس میں گروپ بندی کی سیاست بھی ہوتی ہے،
تو इस सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी ग्रुपबंदी की सियासत करते हैं या आप अपनी नॉट सियासत एट ऑल, करते नॉट हैं? एट ऑल। मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ कि ग्रुप बंदी की सियासत की जाए, क्योंकि ग्रुप बंदी जो है ना, बेसिकली आप अपने डायमंड को चूज़ नहीं कर सकते, मतलब अपने हीरा जिसको लाना चाहते हैं उसको आप चूज़ नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक अगर ग्रुप बंदी की सियासत होगी तो उसमें आप अपना जो सिलेक्शन किया हुआ बंदा नहीं ला सकते। तो इसके लिए मैं मतलब मेरा अपनी राय है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो कॉम्पिटेंट है, जो आने के लिए मतलब समझते हैं हमारे दोस्त के, वो उनको आना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा तो हर एडवोकेट जो है ना दूसरे को जानेगा और उनको पता होता है कि ये किस टाइप का एडवोकेट है। और अगर वो कॉम्पिटेंट है, समझदार है और समझता है कि ये चीज़ कर सकते हैं, और वो ये मेरे दोस्त और मेरे कोलीग समझते हैं, क्योंकि मैं अगर कैंडिडेट हूँ तो वो मुझे बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं जान सकता, मैं तो अपने आप को अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे कि ये कैसे हैं और किस टाइप के हैं, और ये हमारे लिए बेहतर साबित होंगे नहीं होंगे। लेकिन ये जो ग्रुप बंदी की सियासत है, इसको मैं पसंद, मेरी राय है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप रेगुलर बेस पे सिटी कोर्ट भी जाते हैं माशाल्लाह, तो हफ्ते में एक आध दफ़ा हमारा भी जाना होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगा कि पार्किंग का इशू है। बिल्कुल कामरान, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल है ये। एक पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर, क्योंकि गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता है वहाँ पर। इसलिए गाड़ी ले जाने का मतलब है कि हाँ करना, क्योंकि हमारी अपनी एडवोकेट्स पार्किंग है। और इसके साथ अगर ये है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी हो गई हैं, कंजस्टेड हो गया है मामला। फिर दूसरा कि सफाई सुथराई का मामला भी वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पर, मतलब जैसे बारिश हो जाए, या इसके अलावा जो वहाँ पर इशू है आलूदगी का, कचरे का, ये बड़े मामलात वहाँ पर हैं, जो कि हमारे जो बाहर के मेंबर्स हैं, जो कि सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका चाहिए कि इसके ऊपर भी फोकस करें और हम उनके साथ खड़े हैं। वो जहाँ जहाँ खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो यूनिटी तो हमारी है एक साथ। तो जैसा वो हमें कहेंगे हम वैसा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने लाइब्रेरी सीट का ही इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली लाइब्रेरियन सीट का इंतखाब इसलिए किया है मैंने, क्योंकि ये लाइब्रेरी एक बेसिकली एक आपको बुनियादी हर चीज़ सिखाती है, जिसमें आपको दुनिया के हर कानून के मामलात पता चलते हैं। आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही या आप केसेस के हवाले से कोई चीज़ रास्ता नहीं मिल रहा, तो लाइब्रेरी आपको 100% सपोर्ट देती है, बल्कि 200% सपोर्ट देती है, क्योंकि आपको हर वहाँ से साइटेशन से हवाले से और दुनिया के जो भी कानून में जो फैसले हुए हैं उस हवाले से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा सर, अभी हम हाई कोर्ट में खड़े हैं और हाई कोर्ट की सियासत और केबी की सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट की सियासत एक सीनियर्स की सियासत है, और उसमें सारे सीनियर्स होते हैं। और कराची बार की सियासत ये है कि स्टार्टिंग सियासत है, और जो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासत की जाती है कराची बार में, और बड़ा बार है ये हमारा, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार है कराची बार। और हाई कोर्ट बार की सियासत एक समझ लें, अगर वो गर्म है तो ये ठंडा है इस तरह से कि यहाँ पर एक बड़े पीसफुल और अ, बड़ी आराम से यहाँ पर सियासत की जाती है। यहाँ पर वो नहीं है कि ज़्यादा रजिस्ट किया जाए। वहाँ पर तो हम क्योंकि वहीं से ही जो जो एडवोकेट्स हैं वो सीनियर्स होते हैं और हाई कोर्ट आते हैं। जैसे मैं लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट से मैं हाई कोर्ट आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट का मेरे लिए 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सर माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है और आप हर जो है सीट के लिए एलिजिबल हैं, सेक्रेटरी के लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी। लेकिन आपने इंतखाब फिर भी लाइब्रेरियन क्या किया? क्या वजह है कि आप
सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट पे नहीं आ रहे? मैं बेसिकली, मुझे सारे दोस्तों ने कहा, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि आप जीएस के लिए लड़े हैं, प्रेसिडेंट के लिए लड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन लाइब्रेरियन मेरे चूज इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलता है। एक्चुअल देखिए, सियासत में आपकी अपने अपने वे होते हैं। जीएस के एक अपना है कि उसमें फिर ये कि भाग दौड़ ज़्यादा है और जीएस की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लाइब्रेरियन की भी जिम्मेदारी ज़्यादा है। लेकिन जो लाइब्रेरी है उसमें ये कि आपको सीखने को भी मिलता है, आप अपने हिसाब से सीखते हैं, अपने हिसाब से आप अपने केसेस के हवाले से भी सीखते हैं कि आपने फ्यूचर में अगर कोई केस आपके पास आता है तो उसके हवाले से आपको एक्सपीरियंस मिलता है और वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। सबसे मेन चीज़ है लाइब्रेरी, पढ़ने की जगह है। तो आप पढ़ते हैं वहाँ पर और सीखते भी हैं, और जो दोस्त यार आते हैं लाइब्रेरी में इस हवाले से कि कोई साइटेशन में पूछने के, तो उस पे भी आप उनको गाइड करते हैं और आपके लिए वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप किसी को गाइड करें। सर, मौजूदा कैबिनेट कैबिए की आप कैसे देखते हैं? उनके अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दे रही है? हाँ, नहीं, माशाल्लाह कराची बार के जो भी सिलेक्टेड मेंबर्स हैं और बड़ी टफ जो है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ देखें, हर जगह पर कहीं ना कोई कमियां होती हैं जो इंसान को नज़र नहीं आ रही होती हैं कुछ, क्योंकि देखें वकालत एक ऐसा मामला है जहाँ पर 24 घंटे लोग एक्सपेक्टेशन में रहते हैं इंसान के साथ। उस वकील के साथ अगर वो कॉम्पिटेंट और समझदार वकील है तो उसके पीछे तो दुनिया पड़ी होती है, और वो जो है ना वो उसको पीछे वो मसीहा होता है एक्चुअली उनके लिए। और मसीहे के लिए आपको पता है कि फिर लोग एक्सपेक्टेशन किसी से रख लें तो फिर वो चाहते हैं कि वही अचीव करके थे उनको वो मामला। तो हमारे कराची बार के जो अभी सिलेक्टेड मेंबरान हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, समझदार हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिटी बना के रखी हुई है। और कुछ चीज़ें खामियां होती है, हर इंसान में होती है, फरिश्ता तो नहीं है, इंसान गलतियां भी करता है और गलतियों से सीखता भी है। तो अच्छा ये है कि उन गलतियों से हम सीखें जो गलतियां हम कर जाते हैं। एक साल का ये हमारा एक टर्नओवर होता है इलेक्शन के हवाले से एक साल में जितनी ये मेहनत करते हैं तो नहीं अच्छा है, कर रहे हैं माशाल्लाह, और बेहतर कैबिनेट है, बहुत अच्छी कैबिनेट है। सर, मैंने सुना है कि हलीम और बिरयानी पे वोट मिलते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? यार ये बात दुरुस्त तो 50-50 ले लें, लेकिन बेसिकली ये मैं तो कहूँगा कि एजुकेटेड वोट है, ये तालीम याफ्ता वोट है आपका। आप अपने सेंस से वोट दें और ये बिरयानी और हलीम के चक्कर में वोट ना दें कि कोई हलीम खिला रहा है, बिरयानी खिला रहा है तो हम उसको ही वोट देंगे। आप एक समझदार और एक कॉम्पिटेंट बंदा लाएं कि आपका काम कर सके, आपके फ्यूचर के लिए काम कर सके, आपके बच्चों के जो फ्यूचर हैं उनके लिए काम कर सके, वैसा कॉम्पिटेंट बंदा लेकर आएँ, चाहे वो कोई भी आए वकील। मैं नहीं कि मुझे दें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मुझे ही वोट करें, कि मुझे एक दफ़ा आप चूज़ करें और देखें मेरे एफर्ट्स को। तो हर एक को अपना अपना एक एफर्ट दिखाना चाहिए। तो मैं ये जो कहूँगा कि ये बिरयानी और हलीम का वोट ना दें। सर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इश्यूज तो आम आदमी को ही होते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिविलियंस को, आम आवाम को यही कहना चाहूँगा कि एक तो कानून के दायरे में रहें और कानून से बालातर कोई भी नहीं है। बेसिक चीज़ है कि पुलिस वाले के मामला ज़्यादा हैं कि वो तंग करते हैं, रोडों पे, गाड़ियों में, इधर उधर परेशान करते हैं लोगों से, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तंग करते हैं। तो मैं आवाम से और सिविलियन से बोलूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, एनआईसी से लेकर हर चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर पुलिस वाला या कोई भी आपको अफसर या कोई भी परेशान करता है तो आप बिल्कुल ना डरें। आप बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, वकील आपके साथ है, हर वकील आपके साथ है, हर सिविलियंस के साथ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0333-300-830। कोई नाजायज़ ना हक कर रहा हो आपके साथ, आप मुझे कॉल करें, आपका भाई आपके लिए हर जगह खड़ा होगा। सर, माशाल्लाह आप कामयाब वकील हैं कराची में, एक बड़े सिटी में। तो इस कामयाबी का राज अगर मैं पूछूं तो क्या है, क्या वजह है कि आप कामयाब हो पाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कामरान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी कामयाबी का राज मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे भाइयों की दुआएं हैं, मेरी भाभियों की दुआएं हैं, मेरे भतीजों की दुआएं हैं, मेरे बेटे की दुआएं हैं। तो बेटियों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के अलावा इंसान मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हो सकता। आप जितने भी समझदार और जितने भी कामयाब वकील बनते हैं या जितने भी कामयाबी को मिलती है, इसके पीछे दुआएं होती हैं, और माँ बाप की दुआ के अलावा मैं कहता हूँ, और बहन भाइयों की दुआ,
بیوی بچوں کی دعاؤں کے علاوہ آپ آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے دعائیں تو مین چیزیں ہیں اور دعا لینی چاہیے. اور اپنے دوستوں کی، اپنے جتنے بھی آپ کے کولیگ، جتنے بھی آپ کے دوست، جتنے بھی آپ کے جو ہمارے حقوق العباد میں ہیں، ان سب سے آپ اچھے طریقے سے اور اچھی رسپیکٹیبل سسٹم کے ساتھ رہیں اور دعاؤں کے ساتھ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں اپنے ایڈوکیٹس کو اور سارے کولیسٹور کلائنٹس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی شاعری بھی ہے اور اس میں ایک پیغام بھی ہے سب کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے میں پڑھتا ہوں تو مجھے خود میں اس میں ایک وہ کرتا ہوں کہ کاش میں اسی طرح رہوں اور اس طرح کر سکوں. ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں.